All the media fraternity and the viewers of these channels. Today we came here to give you some highlight on the civil service scholarship. इसमें हमारे जो दुमपुरी जो बेस CBS जिसके नाम आप जाने जाते हैं कि HA वेलफेयर सोसाइटी, ये बेसिकली अपर सुबनसिरी का वन ऑफ द रिनाउंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी इस टाइप का कैरियर काउंसलिंग किया, लेकिन आज जो कैरियर काउंसलिंग स्पेशली जो स्कॉलरशिप देने जा रहा है इसका काफ़ी अलग से इनका महत्व है, क्योंकि हमारे सोसाइटी हम फोकस करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विस में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उनका डिफ़िकल्टीज़ को समझते हुए हमने डिसाइड किया सोसाइटी कि हम आने वाला सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को लेके जो स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहा है, उन्हें इनकरेजमेंट देने के लिए हमने ये निर्णय लिया। और बेसिकली ये निर्णय इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि हमारे सोसाइटी के जो फॉर्मर यूथ प्रेसिडेंट लेट मिंगू बागे हेचे, उन्होंने इस सोसाइटी में काफ़ी अपना योगदान दिया और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को 3 टाइम्स वो मेंस तक पहुंचा और परंतु वो किसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाया। तो उनका डेडिकेशन में भी हम उनके जो डिपार्टेड सोल को ऑनर करते हुए ये प्रोग्राम रख रहा है और इस प्रोग्राम से जो भी स्टूडेंट्स हम जिस तरह से सपोर्ट दे सकता है, बेनिफिट दे सकते हैं, हम अपील वही करेगा कि जितने भी यहाँ के जो विद्यार्थी है जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे शुड टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस स्कॉलरशिप। एंड फॉर डिटेल I would like to request the wife of late Mingo Bage Heche, who is also holding the post of Youth President of Heche Welfare Society, Srimati Mandira Bage Heche, please. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Mandira Bage Heche, wife of late Mingo Bage Heche. As my Atto already mentioned that he qualified till Viva 3 times in the civil services examinations, but unfortunately now he is no longer with us. But what we thought, in his memory we would like to launch a course, a program. ये एक scholarship program होगा specially for the youth of Arunachal Pradesh who are aspirants to get through in the civil services examinations. तो ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाउएवर इसके लिए एक टेस्ट होगा, तो इसके बारे में आपको आगे बताएंगे प्रीतपाल सिंह जी। Good afternoon, media fraternity and the viewers of Arunachal Pradesh, especially the youth of Arunachal Pradesh. My name is Dr. Pritpal Singh and I am from Chandigarh to help you for civil services preparation. So this is a great opportunity for you all that HA Welfare Society has taken initiative so as to provide a good education at a very I would say it is almost free of cost. So I will share the details of the course for you. So we will be taking around 100 students for mains and for interview, and the preparation for your mains, the journal studies especially. So we will take the responsibility to cover the journal studies with both your static as well as with your current subjects. And to select these 100 students, we will be organizing a scholarship test. The scholarship test will be descriptive in nature. It will be like a mock test for your mains. The scholarship test will be conducted in Nejuli as well as in Itanagar. And scholarship test में आपका एक essay का paper होगा of around 250 words. And GS1, GS2, GS3 और GS4, एज यू ऑल नो कि जर्नल स्टडीज़ में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर पेपर में से वी विल बी टेकिंग 2 क्वेश्चंस, 100 और 150 वर्ड्स जैसे आपका पैटर्न पेपर में रहता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कॉलरशिप टेस्ट वी विल बी चूजिंग 100 स्टूडेंट्स so as to guide them specifically for mains and for interview. So detail of the contact of HE Welfare Society and the institute concerned. So from tomorrow on, you will be getting that email ID and the phone numbers and the institutes
address and all on the second page of the Arunachal Times. And with this, I thank Mr. Panga Bhage and Mendara ma'am. HA Welfare Society ने एक बहुत अच्छा नोबल इनिशिएटिव लिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश. थैंक यू. तो ये रहा हमारे जो डॉक्टर प्रदीप सिंह हमारे सिविल सर्विस के मेंटर. तो इस कोर्स में हम टोटल 100 सीट्स का ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप, और ये ईटानगर, निर्जली और नाहरलगुन तीनों में ले सकते हैं. और इसमें जो क्वालिफाइड करने के लिए कुछ टेस्ट रहेंगे, और टेस्ट लड़के को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके इनका एलिजिबिलिटी रहेंगे. तो डिटेल के लिए यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल्स दिया गया है, और कल के जो पेपर होंगे उनमें वो भी रहेगा. इसलिए मैं जितना भी विद्यार्थी है, स्पेशली दोज एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस, आई अपील एवरी वन ऑफ यू on behalf of HA Welfare Society to take active participation here and take the opportunity and grab this opportunity so that you can get some help to get clear your civil service exams, which is basically a very challenging job in the state and most prestigious job in the exam of the state. So once again, I appeal all these parents to take the opportunity that HA Welfare Society is providing to you. Thank you. इंस्टीट्यूट अपना होगा ना, आप कहीं से मतलब टाइप करके करा रहा है इंस्टीट्यूट? दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन. ये एक तरह की कोलैबोरेशन है विद दिस योर सिविल सर्विस मेंटर CSM Academy. तो वी हैव अ ब्रांचेस इन ईटानगर एज वेल एज इन नाहरलगुन. सो मिस मंदिरा मैम, शी इज़ माई गुड फ्रेंड. So we were sitting somewhere and we talked, and I liked her idea very much in the in the memory of her departed husband. तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसको हम आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं. और एक सेंटर होगा LMIS इंस्टीट्यूट, हाँ, जो ये collaboration निर्जली, में है, जो निर्जली बागे तिनाली में, बागे तिनाली में. LMIAS इंस्टीट्यूट, IAS इंस्टीट्यूट. दूसरे वाला क्या था? CSM Academy. CS Academy. ये दोनों सेक्युलर. हाँ जी. ये अब इसमें फुल कोर्स कराएगा ना, ये जो कुछ लिमिटेड है? नहीं, इसमें जनरल स्टडीज़ मेंस का आपका फुल कोर्स होगा. GS1, GS2, GS3 और GS4 पूरा फुल कोर्स होगा जनरल स्टडीज़ का. बाकी वो सिलेबस का पेपर नहीं होगा? नहीं, बाकी अभी जो फर्स्ट स्टेजेस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी ऑन 15th of December. तो अभी टाइम कम है, सो वी हैव प्लान्ड दिस कोर्स फॉर मेंस ओनली. बट कोई भी स्टूडेंट जो हमको देख रहा है, यू विल गेट आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स. अगर उसको प्रिलिमिनरी में भी कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, एंड वॉट एवर हेल्प कैन बी गिवन फ्रॉम आवर साइड. We will be very much obliged, and we will be very much happy to help the students around on the behalf of HA Welfare Society. और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सा जो CBOs रहते हैं, बेसिकली जो क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग जब भी इस तरह का स्कॉलरशिप या फिर कैरियर काउंसलिंग करते, देयर टारगेट इज टुवर्ड देयर ओन क्लान, उनका क्लान को होता है. लेकिन इसमें इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. ये ओपन कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश के कोई भी स्टेट में से कोई भी लड़का जो इंटरेस्टेड है, दे कैन टेक बेनिफिट विद. ये सब के लिए ओपन है, ये जनरल के लिए है. तो इसलिए इसको कोई भी ट्राइब के, कोई भी कहीं का भी रहने वाला, स्पेशली जो सिविल सर्विस ट्राई कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वो इनका लाभ उठा सकते हैं. ये टेस्ट, अब जो टेस्ट लेने का जो मेन मोटिव क्या है? यहाँ तो बहुत सारा ऐसे मतलब पोर स्टूडेंट होगा जिनका पास वो मतलब कोचिंग क्लास जाने का पैसा नहीं होता होगा, लेकिन ये आप लोग जो टेस्ट रख दिया है, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि आपने वैसे भी देखा होगा सोसाइटी में कि नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. वी हैव अ सीरियस कैंडिडेट्स ऑल्सो, वी हैव अ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ऑल्सो. सो जैसे आपको मैंने बोला कि 2 questions will come from each paper. So total it will become 8 questions, and now there will be an essay also. So this is a type of filtering, so that ki like we have a limited seats of 100 students.
अब सपोज करो 100 में से अगर 20, 25, 30 वी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अगर हमारे पास नॉन सीरियस कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो फिर सीरियस कैंडिडेट्स का लॉस हो जाता है। सो अगर कोई टेस्ट देगा, अगर वो 8 क्वेश्चंस लिखता है, ऐसे लिखता है, तो एक हमको पता लग जाएगा कि इस कैंडिडेट का IQ लेवल क्या है, ये सिविल सर्विस कर सकता है नहीं कर सकता है, इसकी सीरियसनेस कितनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीरियसनेस HA Welfare Society will be putting the financial efforts, teacher will put its labor effort, and we both will work together for the welfare of a student. That is the only purpose of this test, so that we can filter out the serious candidates. As you have mentioned that actual welfare society will be only for those students, aspiring candidates who are facing financial crisis. Then you are about to take a test of those students. तो इसमें अगर for suppose एक aspiring candidate है, already he has gone through the coaching classes, and then जब pre और post का एक काउंसलिंग करियर काउंसलिंग आता है तो he or she might be also applied for the same. उसमें फिर जो ऑलरेडी ये फाइनेंशियल क्रंच होके जो कोचिंग नहीं कर पाया, उसके बाद जो करके आया ऑलरेडी करके प्रिपरेशन कर पाया, वो दोनों के बीच में आप कैसे उसको नहीं, मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने कोई कोचिंग कर ली है सपोज, क्योंकि द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट और दिस इज़ चैलेंजिंग ऑल्सो, क्योंकि अगर आपने दिल्ली में भी देखा होगा सिलेबस सिविल सर्विस का दैट गोज फॉर 1.5 ईयर्स। जो बच्चे ने कोचिंग कर ली हुई है तो मेरे को ये लगता है कि वो बच्चा थोड़ा कम इंटरेस्टेड होगा एज कम्पेयर टू जो इसको करना चाहता है, मतलब कि पहली बारी करना चाहता है। So that we will in future we will take care of कि कैसे उसको हम फिल्टर करना है, कैसे उसको हम एंटरटेन करना है। और अगर कैंडिडेट सीरियस है, आई डोंट थिंक कि HA वेलफेयर सोसाइटी विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम इंक्रीजिंग द सीट फ्रॉम 100 to 150 और टू द 200। आई डोंट थिंक कि, मेरा तो यही मानना है कि लाइक ये अभी एक क्लासरूम है, अब इसमें इतने स्टूडेंट बैठे हैं, अगर कुर्सियाँ कुछ खाली हैं उसमें और भी स्टूडेंट बैठेगा, आई डोंट फील कि देयर इज गोइंग टू बी एनी डिफरेंस इन दैट। So we are not sticking by number. This number is only indicative. So if we will be getting higher number of candidates, so we will be it is our privilege और it is our like वो एक तरह की सेवा कहते हैं पंजाबी में, एक तरह की सेवा है कि सोसाइटी की तरफ हमारी कुछ सेवा होगी और हम उसको एंटरटेन कर लेंगे। वो तो एक तरह का कह लो कि भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा दी और उसको हम एंटरटेन कर ही लेंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। नंबर इज ओनली इंडिकेटर।